ठीक है, ये फिर मुझे ईमेल कर दें ताकि सबके साथ इसको शेयर कर दें। ठीक है सर। Okay, Ji. So the course, as you know, is web programming. So basically, the purpose of this course is to, as we talked about earlier, कि आपको familiarize करें with the front-end technologies, back-end technologies, and some of the popular frameworks that are being used in web development. उसके साथ हम different जो technologies हैं, जो different tools हैं, उसकी भी बात करेंगे that are being used in web development. Along with that, हम कुछ software related technologies like MVC और उसको जो slicing of pages and connecting different components of the page in such a way कि हम logic और presentation उसको separate out कर सकें, उसकी भी बात करेंगे, but we would come to that in the later parts of this course जब आपके पास reasonable resources हो जाएंगी and your application you are capable of building complex applications. So in at that level आपका कोड इतना ज़्यादा होगा कि उसका मैनेज करना मुश्किल होगा, and we would study these MVC and such technologies के जिसके थ्रू आप अपने कोड को ज़्यादा मैनेजेबल, ज़्यादा रीडेबल बना सकते हैं, और हम उसको मॉड्यूलराइज करेंगे कि उसको इवन इन फ्यूचर आप अच्छे तरीके से रीयूज़ कर सकें। हम डिफरेंट CMS को देखेंगे, फर्स्टली हाउ टू मैनिपुलेट देम विद द हेल्प ऑफ एडमिन पैनल्स, एंड सेकेंडली उसकी इंटरनल कोडिंग किस तरह से है, किस तरह से आप CMS के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, एंड हाउ you can actually customize them for yourself or your clients. And then proceeding from there, हम faster जो single page applications है that could be built in Node.js and React, उसको हम study करेंगे कि how we can make those applications. So basically, the main objectives that you should learn or that you should carry with yourself after studying this course is to have good development skills both at the front end and the back end. So basically, आपके पास अच्छी जो है दोनों साइड की फ्रंट एंड बैक एंड के डेवलपमेंट की स्किल्स होनी चाहिए, और you should be aware of the latest frameworks and technologies that are being used in web development. ये आपकी नो हाउ जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और फ्रेमवर्क्स हैं, ये इसलिए होनी चाहिए कि आप जो है जो करंट जो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, जो पैटर्न्स हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, आप उसके साथ आसानी से आप उसके अंदर ब्लेंड कर सकें। सो बेसिकली जो अर्लियर जो फ्रंट एंड और बैक एंड की लैंग्वेजेस हैं, उसको जो हम देखेंगे, दैट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू द कोर स्किल्स दैट यू शुड हैव, और फिर जो है you may focus on specific technologies or frameworks that would actually help you to be more adept with the with either of the two technologies के जिसके अंदर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बुक्स जो हैं काफ़ी सारे हैं, बट सिंस दिस इज़ द काइंड ऑफ कोर्स के जिसमें you should actually go online as much as possible for help. आपको चीज़ों की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको कोड के काफ़ी सारे रिसोर्स मिलेंगे. आई डू नॉट नीड टू लाइक emphasize on the help that you can get from websites like W3 Schools, Stack Overflow. तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि with the help of such rich resources available online on different websites, I think we may not, if we do not follow any book for this course, so still we should be good to go. तो आप ब्लॉग्स वगैरह और जो कोड से रिलेटेड सपोर्ट्स हैं, जो इस तरह की वेबसाइट्स हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके ऊपर अपनी उसको रीड करें, और उसके अंदर बल्कि आई वुड से कि आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें, तो दैट वुड एक्चुअली हेल्प यू लर्न मोर इन अ कोलेबरेटिव वे, कि जिसमें कुछ लोग आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप कुछ लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. सो क्रिएट योर अकाउंट्स ऑन Quora and Stack Overflow in these websites and start reading about the problems that people are posting over there, the kind of responses that people are submitting on those websites, and if you feel कि आप उसके अंदर contribute कर सकते हैं, so that would be good. और आप जो है you would learn from these resources both ways, by reading through the solutions provided by other people and also by providing your own solutions कि आपके ख्याल में जो है कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जो और लोगों ने पोस्ट किए हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं. अच्छा, I have modified this, but I don't know why we are still getting the old copy, so I'll see. I think I didn't changed it, didn't saved it, तो वो जो है I'll share the updated copy of this outline with you through the classroom.
ठीक है. सो वी वुड नॉट हैव एनी क्विजेस बिकॉज अनलेस थिंग्स गेट बैक टू ऑन कैंपस, अगर चीज़ें ऑनलाइन रही तो क्विजेस नहीं होंगे. एंड दैट परसेंटेज इज गोइंग टू बी एडेड टू assignments and project. Project is extremely important in this course क्योंकि it's a very practical course, and if you do not apply all the skills in the form of a project, assignment में तो आप करेंगे, लेकिन assignment के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप एक assignment जो है that is going to focus on a specific टूल और लैंग्वेज दैट यू हैव लर्नड इन लास्ट कपल ऑफ वीक्स, और आप उसके अंदर असाइनमेंट करके सबमिट करेंगे एंड दैट वुड बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम द असाइनमेंट दैट यू डू नेक्स्ट. जैसे पहली असाइनमेंट आपकी अगर HTML और CSS की है, सो द सेकंड वन इज गोइंग टू बी इन जावास्क्रिप्ट, द थर्ड वन मे बी इन PHP. सो बेसिकली आप चीज़ों को कंपोनेंट वाइज जो है लर्न करेंगे और बिल्ड करेंगे. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये भी एक्सपीरियंस हो कि हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क टुगेदर. So if when you work on a project, so basically you would have everything working in all together in a single project. The complexity of the code is going to increase. चीज़ें जो है वो आपस में mix up होंगी. Whatever you do, if you haven't separated it properly, if you do something wrong in JavaScript, that is going to affect your presentation or your HTML. So इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह का एक प्रोजेक्ट करें जिसके अंदर एंड टू एंड आपने इस कोर्स के अंदर जो चीज़ें पढ़ी हैं आप उसको कंबाइन करके ट्राई कर सकें एज वन बिग एप्लीकेशन. दिस इज़ द वीकली प्लान फॉर दिस कोर्स. और इसके अंदर जो है एज वी सेड अगेन आई मेड सम मॉडिफिकेशंस. I'll share the updated copy with you. This is the older one version of it. So we'll have the introduction that we have like currently what we are studying in this course. हम in this lecture हम एक overview देख रहे हैं कि इस पूरे कोर्स के अंदर क्या होगा. So this is what we are doing in week 1, and along with that in the next lecture मैं आपको एक brief history जो है इंटरनेट की और वेब एप्लीकेशंस की और वेब डेवलपमेंट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ताकि आपको एक आइडिया हो कि हाउ थिंग्स evolved over a period of time. So we would study that in the first week. इन द सेकेंड वीक हम डिफरेंट वेब टेक्नोलॉजीज़ को स्टडी करेंगे. उसमें जैसे मैंने आपको बात की कि जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल सर्वर क्या है, वेब सर्वर क्या है, एप्लीकेशन सर्वर क्या है, इनके रोल्स क्या हैं, पोर्ट नंबर जो है उसका क्या रोल है, ये HTTP HTTPS जो हम यूज़ करते हैं इसका क्या मकसद है, ब्राउज़र जो है वो कैसे कम्युनिकेट करता है सर्वर से, हम जब किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं, हाउ दैट डेटा गेट सबमिटेड इनटू द सर्वर, हाउ द सर्वर सेंड्स बैक इट्स रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट. तो ये जो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में काम कर रही होती हैं, जो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ऑलरेडी वर्किंग फॉर्म में है, ये सारे किस तरह से काम करें. सो वी वुड ट्राई टू फेमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द करंट स्टेट ऑफ थिंग्स इन वेब डेवलपमेंट. हम इनको समझेंगे कि ये किस तरह से सारा काम कर रहे हैं. HTTP और HTTPS के अंदर क्या फ़र्क है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स क्या है, बिकॉज यू विल बी needing them in order to upload your files onto the web servers. हम अपनी मशीन को क्यों नहीं सर्वर बना सकते, व्हाट इज़ अ प्रॉक्सी सर्वर. तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि आप जब हेल्प के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे, सो ये टर्मिनोलॉजीज आप जो है यू वुड कम अक्रॉस देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, सो यू वुड नॉट बी इन अ गुड पोजीशन टू ग्रास्प द आइडिया. तो इस वजह से हम पहले इन चीज़ों के ऊपर एक जनरल डिस्कशन करेंगे इन वीक 2. एंड देन एज आई सेड के we'll start with HTML in the second lecture of week 2. और हम बेसिक जो है HTML को स्टडी करेंगे in a way where it can be used as a markup language in order to give you a layout for your web pages. HTML जो है as it stands for hypertext markup language, but you can hardly consider it as a language because it's just give you certain tags. आप HTML के अंदर लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसके अंदर वो वर्सिटैलिटी नहीं है जिस तरह से आप C++ और पाइथन और PHP के अंदर आपने देखे होंगे या आप देख सकते हैं कि आप उसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं और आप डिफरेंट तरह के बिहेवियर उससे ले सकते हैं. सो बेसिकली इट्स नॉट अ फुल फ्लेज्ड लैंग्वेज, इट जस्ट गिव्स यू अ सेट ऑफ टैग्स. उसको यूज़ करते हुए आप अपना जो मकसद है which is regarding to the layout of your web page, वो आप communicate कर सकते हैं ब्राउज़र के साथ. The browser is the one that is basically that understands that language of tags, और वो उसको पता है कि
H1 होगा तो इस टैग के साथ मैंने क्या करना है, मेटा है तो इस टैग के साथ मैंने क्या करना है, और उसको इन सारे टैग्स जो हैं उनके रोल्स पता है, और वो अकॉर्डिंगली आपको उसके बिहेवियर के मुताबिक जिस तरह से आपने उसको कोड किया हुआ है वो लेआउट आपको ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले कर देता है। सो HTML इज बेसिकली अ लैंग्वेज दैट डिसाइड्स कि आपके पेज के ऊपर जो है वो क्या आएगा और वो किस तरह से जो है वो आएगा। हम आगे जो है जब यहाँ पे पहुँचेंगे हम ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली इसके अंदर जो है आपके पास कुछ टैग्स जो हैं दे वुड बी रिलेटेड टू द कंटेंट के जिसके अंदर आप उस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल anchor which stands which is represented with A is used for placing different links into your web page. Table का जो tag है that is being used for inserting tables into your web page. Um, UL or OL is being used for inserting lists into your web page. H1 to H6 are used for inserting headings. So ये सारे जो है ये content के टैग्स हैं और आपने जिस तरह का कंटेंट डालना है आप उसका अकॉर्डिंगली टैग जो है वो यूज़ करेंगे। फिर इसके अलावा कुछ सेमेंटिक टैग्स हैं जिससे अपीयरेंटली जब आप उस वेब पेज को देखेंगे तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पीस ऑफ कंटेंट। और ये आप जो है एट दिस स्टेज यू वुड नॉट रियलाइज द डिफरेंस। एक तो सिर्फ ये है कि आपको कोड की मैनेजमेंट के अंदर जो है उसका फ़ायदा नज़र आएगा, आपका कोड ज़्यादा क्लीनर होगा। हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर आपको क्लियरली पता होगा। वहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि बिफोर दिस div is a kind of element that was being used for separating different components of a web page layout, और उसको उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा problems आ रहे थे। That's why these semantic elements are being introduced into HTML in its latest version, that is HTML5। इसके अलावा जो ऑल्दो आप इस कोर्स के अंदर तो वो नहीं देखेंगे, लेकिन जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो डिफरेंट वेब पेजेस को क्रॉल करते हैं और उसके अंदर से इंपॉर्टेंट कंटेंट निकालते हैं, उनका काम बहुत डिफ़िकल्ट होता था, बड़ा उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती थी जब तक ये सेमेंटिक एलिमेंट्स नहीं थे। सो सेमेंटिक एलिमेंट्स जो है वो एक्सेसिबिलिटी के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है कि जिसमें डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस आर बीइंग अटैच्ड टू कंप्यूटर के वो वेब पेजेस जो है उसको प्रोसेस करें और उसको मे बी लेट से इफ समवन इज ब्लाइंड तो उसको उसको स्पीच में कन्वर्ट करें। सो इस तरह के जो सेमेंटिक टैग्स हैं they are going to provide a logical separation between the different components of a page। उसके बाद जब आपके पास कंटेंट आ गया और उसका लेआउट आ गया कि लेट से मेरे पास इमेज आएगी पेज के अंदर, इतने लिंक्स होंगे, ये लिस्ट होगा, ये टेबल होगा, दो चार पैराग्राफ्स होंगे। सो वंस यू हैव डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू प्रेजेंट ऑन अ सिंगल पेज, इट मे नॉट बी इन अ वेरी प्रेजेंटेबल वे। ठीक है, चीज़ें जो है वो इतनी अपीलिंग नहीं होंगी। सो with the help of CSS we will try to make that more absorbing for the end user। सो CSS का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप बस उसके अंदर ग्राफिक्स डालें और आप जो है उसको बहुत ज़्यादा फ्लैशी बना दें, बट CSS हैज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल कि आप उसको प्रेजेंटेबल बनाएं। अगर आप टेक्स्ट यूज़र को दिखा रहे हैं तो आपको वो टेक्स्ट जो है वो उसको रीडेबल हो, उसका साइज़ आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, उसकी फॉन्ट फैमिली ऐसे रखें कि वो स्क्रीन के ऊपर रीडेबल हो। इफ़ समवन वांट्स टू टेक अ प्रिंट ऑफ दैट पेज, आप उसको फिर किसी और ऐसा फॉन्ट फैमिली में कन्वर्ट करें कि जो प्रिंट के ऊपर रीडेबल हो। अकॉर्डिंगली डिवाइस की साइज़ क्या है उसके मुताबिक आप उसको एडजस्ट कर सकें। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का डिफरेंस ऐसा हो, उसका कंट्रास्ट ऐसा हो कि आपका टेक्स्ट जो है वो रीडेबल हो। द सेम वे इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग एन इमेज इन सपोर्ट टू द टेक्स्ट के, ये जो है लेट से आप किसी एप्लीकेशन या किसी मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं और साथ में आपने उसकी फिगर लगाई हुई है, सो दे शुड बी पोजिशनड इन सच अ वे कि पता चले कि ये इमेज जो है इट्स रिलेटेड विद दिस पीस ऑफ टेक्स्ट। सो बेसिकली CSS का मकसद जो है that isn't providing something flashy on your front end, but it's basically making it more meaningful for the end user। और फिर उसके अंदर जितना ये फ्लैशी और इस तरह के जो है कलरफुल और ये मूवमेंट्स वगैरह हो गए, एनिमेशन वगैरह हो गए, ये आप डाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट एप्लीकेशन। अगर आप कोई लेट से किसी फोटोग्राफर के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं, सो नाउ इट शुड बी इन सच अ वे कि इमेजेस जो हैं
उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उनकी प्रेजेंटेशन बेहतर होनी चाहिए। अगर आपका कोई लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन है तो कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और बैकग्राउंड का नॉइज़ जितना कम होगा उतना लोग जो है वो कंटेंट को इजीली रीड कर सकेंगे। सो सी एस एस हैज़ अ वेरी क्लियर रोल कि आपका जो नीश है किसी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन का, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट कर सकें और एंड यूज़र के लिए उसको एक प्लीजिंग इफेक्ट बनाएं, उसको ऐसे प्रेजेंट करें कि the user would actually want to continue reading on from your application as compared to some other application that is available। ठीक है, जो आपके पास डिफरेंट जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, इफ़ यू प्रोवाइड अ बेटर रीडिंग एक्सपीरियंस, सो दैट कुड बी अ पॉइंट के ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके एप्लीकेशंस पे आके वहाँ से इंफॉर्मेशन लें। सो बाय दिस पॉइंट आप इस कैपेबल होंगे कि आप वेब जो है स्टैटिक पेजेस जो हैं वो आप बना सकें with the help of designing a layout that what you want to have on that page, and how you would make it presentable with the help of CSS। And then we would study some JavaScript। हम JavaScript एज a लैंग्वेज उसके बेसिक्स कुछ देखेंगे। ठीक है, और उससे हमें ये पता चलेगा कि जो आपकी बेसिकली वी वोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है कि आप सी प्लस प्लस और बाकी कुछ लोग पाइथन जो हैं वो करके यहाँ पे पहुँचे हैं। सो यूजिंग दो स्किल्स इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू learn this new language। तो we would spend some time on doing something basic with JavaScript। ठीक है, जैसे आप वेरिएबल्स क्रिएट करना, लूप्स, डिसीजंस, कंट्रोल्स वगैरह जो है, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है इनको क्विकली ओवरव्यू करेंगे, एंड देन वी वुड सी के हाउ यू कैन एक्चुअली यूज जावास्क्रिप्ट टू मैनिपुलेट योर वेब पेज। ठीक है, सो जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, सो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट यू कैन डायनेमिकली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पेज एंड इवन इट्स प्रेजेंटेशन। सो उसका एडवांटेज क्या है कि आपका वेब पेज ऑल्दो इट्स स्टिल स्टैटिक, it's not dynamic, but it can give you the illusion of a dynamic web page। डायनेमिक वेब पेज क्या है? जिसका कंटेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। आप सेम वेब पेज जो सेम यूआरएल है, यूआरएल क्या है? इट्स बेसिकली द यूनिक एड्रेस, इफ यू मे कॉल इट दैट वे। एक यूनिक आईडी है वेब के ऊपर फॉर एवरी रिसोर्स दैट इज अवेलेबल। हर पेज का अपना एक यूनिक जो है URL होगा। सो इफ़ यू वांट टू गो टू दैट पेज, आप उसका URL जो है वो ब्राउज़र के अंदर टाइप करेंगे और यू मे एक्सेस इट थ्रू अ लिंक, और आप उस पेज के ऊपर चले जाएंगे। नाउ अ पेज दैट गिव यू द सेम कंटेंट ईच टाइम यू विजिट दैट पेज, सो दैट शोज के वो एक स्टैटिक पेज है। अ पेज दैट यूज द सेम URL बट ईच टाइम यू विजिट दैट पेज द कंटेंट कंटिन्यूज टू चेंज। अगर आपने सुबह उस पे गए, that would give you a different set of content, आपने बाद में देखा, just like our feed updates on Facebook। So each time you visit Facebook you would see in the browser case URL same है, but the content is different each time। So this shows कि it's a dynamic web page। ये कोई भी सर्वर के ऊपर कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, and that page is basically changing its content continuously। So once you study HTML and CSS, you should be able to build static pages। जब आपने उसके साथ JavaScript ऐड कर लिया है, so now you can dynamically change the behavior of your page, web page। It's still going to stay a static, to be a static web application। वो dynamic नहीं होगी because it's still not communicating with the server for डायनेमिक चेंजेस। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो थोड़ी सी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, स्ट्रिंग ऑन द क्लाइंट मशीन, और एक डायनेमिक इफेक्ट दे सकता है। तो वेबसाइट डायनेमिक नहीं होगी लेकिन एक डायनेमिक इफेक्ट देगी, और डायनेमिक इफेक्ट का मतलब हमारा ये है कि लेट्स से आपके पास एक टेबल है और उसके ऊपर जो है एक बटन लगा हुआ है। एज यू क्लिक ऑन दैट बटन, दैट टेबल जस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द वेब पेज। तो इसने क्या किया? उसको हाइड कर दिया आपके पास। और आप फॉर्म्स के अंदर इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे कि लेट्स से यू आर अप्लाइंग फॉर लेट्स से फॉर हायर डिग्री, या आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड द फॉर्म सेज व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। आपने BS की डिटेल्स दे दी, देन इट्स आस्क्ड फॉर MS, और आपने उसको नो कर दिया कि आई हैवंट got my MS degree, I'm actually applying for a scholarship for MS degree। So आगे जो MS से related जितने questions थे वो सारे hide हो जाते हैं because they were all dependent on that one maybe radio button के जिसमें आपने कहा कि no I haven't done my MS। तो MS से related जो सारे questions हैं now they are not visible anymore। और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपका वेब पेज बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, उसके अंदर अननेसेसरी चीज़ें जो नहीं है, क्वेश्चंस
जो अदरवाइज वहाँ पे होती हैं अगर इस तरह का डायनेमिक इफेक्ट ना होता। सो दैट्स व्हाट, या ये कह लें कि आप डायनेमिकली सीएसएस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी वेब पेज के ऊपर आप जहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं वो कंटेंट जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है, बाकी चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाती हैं। सो दैट इज़ बेसिकली डायनेमिकली चेंजिंग द सीएसएस ऑफ योर वेब पेज। अगर ये ना होता तो आपको पेज के स्टार्ट में जो आपने सीएसएस दिया हुआ है इट्स गोइंग टू स्टे द सेम। जिस पैराग्राफ का जो साइज है, जो उसका कलर है, इट्स गोइंग टू स्टे द सेम ईच टाइम एंड एवरी टाइम आप उस वेब पेज को विजिट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट आप कॉन्टिन्यूसली बेस्ड ऑन हाउ द यूजर इंटरेक्ट विद द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट पेज आप उसको कॉन्टिन्यूसली मॉडिफाई कर सकते हैं। सो द सीएसएस वुड कीप ऑन चेंजिंग। आपने एक जगह पे एक पैराग्राफ के ऊपर कर्सर लेके गए, वो पैराग्राफ जो है हाईलाइट हो गया, उसका टेक्स्ट बड़ा हो गया, बाकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ब्लर हो गई, बैकग्राउंड में चली गई। फिर आपने नीचे स्क्रॉल किया, आप अगले पैराग्राफ पे चले गए, तो जो पहला पैराग्राफ था अब वो बैकग्राउंड में चला गया है और जो नया पैराग्राफ है वो प्रोमिनेंट हो गया है, वो फोर फ्रंट पे आ गया है। सो विद दिस यू कैन एक्चुअली change the presentation of your web page based on how the user interact with the different components or different sections of your web page. So that's what we mean by having a dynamic effect on your web page. इसी तरह से यूजर ने एक लेट से एक बटन पे क्लिक किया और उसके रिस्पांस में आपने एक नई टेक्स्ट फील्ड उसके अंदर दे दी कि इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, दे गिव यू 2 और 3 ऑप्शंस, आपका जो चॉइस है वो उसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करता। द फोर्थ ऑप्शन इज अदर्स, आप अदर पे क्लिक करते हैं एंड न्यू टेक्स्ट फील्ड अपीयर्स और आप उसके अंदर अपना जो चॉइस है वो आप वहाँ पे टाइप करके सबमिट कर देते हैं। सो बेसिकली हैविंग दैट न्यू टेक्स्ट फील्ड अपीयरिंग is what you can do with the help of JavaScript। ठीक है, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज द डोम मैनिपुलेशन इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है बेसिकली डोम इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और हमारा जो सारा HTML का पेज है यू कैन विजुअलाइज इट विद हेल्प ऑफ, यू कैन विजुअलाइज इट लाइक अ ट्री। ठीक है, वी विल स्टडी दैट इन मोर डिटेल जब हम उस जगह पे पहुंचेंगे, बट फॉर नाउ इफ यू कुड जस्ट थिंक ऑफ इट, जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ट्रीज पढ़े हैं। सो ऑल दीज टैग्स दैट वी सेड के HTML के अंदर सारे टैग्स हैं, कुछ टैग्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर नेस्टिंग उनकी हो सकती है और कुछ की नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल वी हैव अ टैग HTML के अंदर हेड का टैग आ सकता है, बॉडी का टैग आ सकता है, फिर बॉडी के अंदर पैराग्राफ हो सकते हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकते हैं। सो बेसिकली वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल दीज टैग्स, और ये एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है कि किस तरह से हम इनकी नेस्टिंग कर सकते हैं। कहाँ कहीं पे ये हार्ड रूल है, कहीं पे सॉफ्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मे बी एक लिंक के अंदर जो है पैराग्राफ भी डाल सकते हैं और पैराग्राफ के अंदर लिंक भी डाल सकते हैं। तो कहीं पे ये स्ट्रक्चर लूज है, इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से यूज करते हैं, हाउ इट वुड मेक मोर सेंस लॉजिकली, और कहीं पे ये स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड है और आपको उसी तरह से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा कि हेड का सेक्शन जो है या उसकी जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो टैग्स हैं, दैट वुड ऑलवेज कम अंडर द HTML एलिमेंट। जो लिस्ट आइटम है दैट शुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो कुछ टैग्स ऐसे हैं कि उनके अंदर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप जो है दैट इज फिक्स्ड, और कुछ के अंदर इट्स फ्लेक्सिबल, इट्स अप टू यू कि आप किस एलिमेंट को किसके अंदर नेस्ट नेस्ट करते हैं। सो इफ यू लुक इनटू इट द होल थिंग वुड लुक लाइक अ स्ट्रक्चर। आपका जो पूरा वेब पेज है उसके अंदर जितने टैग्स हैं उसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द मेन usefulness of JavaScript is that it can actually manipulate that DOM structure or that document object model. So JavaScript is basically having it has the capability कि आपके वेब पेज के अंदर किसी भी एलिमेंट को जाके उसके साथ कुछ भी जो है उसकी मॉडिफिकेशन करें, उसको रिमूव करें, उसको अपडेट करें, नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करें आपके वेब पेज के अंदर। So it has complete access to all the components of your web page or all the tags in their tree, और आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। The same way it has access to all the presentation or all the styling that you are using for your web page, और उनकी स्टाइलिंग्स को जाके मॉडिफाई कर सकता है। और ये जावास्क्रिप्ट की वजह से ही है कि आप देखते हैं कि आपके पास जो मेन मेन्यू है, इफ़ यू हैव क्लिक्ड ऑन वन एलिमेंट, तो वहाँ पे मेन्यू में एक जिस करंट आपका जो टैब है वो हाईलाइट हो जाता है, फिर आपने नेक्स्ट टैब पे जाके क्लिक किया और अब वो हाईलाइट हो गया। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज हेल्पिंग यू इन इन रिमेंबरिंग कि आप करंटली इस वेब पेज के अंदर किस टैब के अंदर हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है कर सकते हैं कि वो
हम डोम स्ट्रक्चर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फॉर्म की एग्जांपल दी कि वो हमारे जो विजुअल लोड है उसको कम कर देता है बाय रिमूविंग अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम आवर प्रेजेंटेशन और आवर स्क्रीन। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको हाइड कर देता है, और वो हमारे स्टाइलिंग में भी हमें हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको टैब की एग्जांपल दी कि वो आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि आपकी करंट लोकेशन इस वेबसाइट के अंदर कहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद वंस वी डू दैट, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर और भी काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, user, जिस तरह से again we would take the example of submitting some form. So let's say whatever the kind of information that you want the user to provide on those forms, जैसे let's say यूज़र ने अपनी सिटी जो है वो टाइप इन करनी है। सो इफ द यूज़र लीव दैट फील्ड एम्प्टी, तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको बता सकते हैं कि इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो आप वहाँ पे बेसिकली यूज़र को हेल्प कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी फॉर्म को ठीक तरीके से फिल करें, दैट वुड रिजल्ट इन सक्सेसफुल सबमिशन। लेट्स से इफ अ यूज़र इज़ बेसिकली picking certain items from into a cart, तो आप उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू बता सकते हैं कि यू कैन नॉट हैव मोर देन 10 items at a time in your cart। अगर एक यूज़र जो है वो लेट्स से कोई भी आप इस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर वो कोई पासवर्ड डिसाइड कर रहा है, तो आप वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं कि करंटली, और उसके लिए ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फार्मूला इंप्लीमेंट हो कि लेट्स से अगर यूज़र ने सिर्फ स्मॉल केस लेटर्स यूज़ किए हैं तो कितनी स्ट्रेंथ होगी, उसके अंदर नंबर्स भी हैं तो क्या स्ट्रेंथ होगी। सो उसके लिए डिफरेंट कोई पैटर्न्स ऑलरेडी डिफाइंड हैंगे, बेस्ड ऑन दैट कुछ स्कोरिंग जनरेट हुई होगी। बट बेसिकली व्हाट वी मीन इज जावास्क्रिप्ट इज हेल्पिंग यू एट रन टाइम कि आप जो स्कोर जो पासवर्ड दे रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपको हेल्प आउट कर रहा है इन फिलिंग आउट दोज फॉर्म्स। और उसका फ़ायदा ये है, इट डजेंट मीन कि आपने जो सारे कंडीशंस लगाए हैं इस तरह के अपने सिक्योरिटी के वो सर्वर की रिप्लेसमेंट नहीं है। द सेम चेक्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी अप्लाइड एट द सर्वर साइड, बट बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज मेकिंग इट हेल्पफुल कि आपको ऑन द स्पॉट यूजफुल फीडबैक प्रोवाइड करे, और आप अकॉर्डिंगली अपनी जो मिस्टेक हैं इन फिलिंग दोज फॉर्म्स आप उसको ठीक कर सकें। सो अगेन वंस इफ़ यू हैव बैकएंड, अगर आपके अंदर पीएचपी वगैरह उसकी सपोर्ट है वेबसाइट के अंदर, सो व्हेन द फॉर्म इज बीइंग सबमिटेड, सो द सेम थिंग्स आर चेक्ड अगेन एट द सर्वर साइड, क्योंकि थिंग्स मे बी थिंग्स मे बी bypassed ऑन द क्लाइंट साइड। शायद उन्होंने ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया हुआ हो, दैट मीन्स कि ऑल द फंक्शनैलिटी दैट यू हैव इम्प्लीमेंटेड इन जावास्क्रिप्ट इज जस्ट यूजलेस। सो कुछ यूजर्स वो भी कर सकते हैं, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो। सो दैट मीन्स कि एटलीस्ट जो यूजफुलनेस है, जो सपोर्ट है, वो तो अगर यूज़र नहीं लेना चाहता और उसने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन आप डेटा के लिए जो सिक्योरिटी के चेक्स लगा रहे थे, अगर वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर है, इफ द यूज़र हैज़ डिसेबल्ड जावास्क्रिप्ट, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो यू नीड टू अप्लाई ऑल दोज एट द सर्वर साइड ऑल्सो, एंड वंस यू हैव डन दैट, सो सर्वर पे पीएचपी के अंदर भी वो सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, एंड दे मे बी स्टोर्ड इन सम फाइल और डेटाबेस, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ डायनेमिक एप्लीकेशन। उसके लिए हमें पीएचपी की इम्प्लीमेंटेशन जो है पीएचपी को सीखना पड़ेगा, और वंस वी डू दैट हम डायनेमिक एप्लीकेशंस बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक एंड अ डायनेमिक एप्लीकेशन? सो कोई बताएगा? हेलो? यस सर। सर सर जी डायनेमिक को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जो चेंज होती है, मतलब कि रन टाइम पे जो हमारे पास चेंजेस आती हैं उसको हम डायनेमिक लिखेंगे। स्टैटिक में हम एज आ के उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, रन टाइम के ऊपर कोई चेंज, जो चीज़ हमने बना दी हुई है वो एज इट इज़ इसी तरह रहेगी। और इसके अंदर हमने जो देखी है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है ना हम इल्यूजन दे सकते हैं कि जी ये डायनामिक है, कि मतलब हम उस यूज़र के ऊपर डिपेंड करके कि जी यूज़र क्या काम कर रहे हैं उसके थ्रू हम उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। जी एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल ऐसा ही है कि डायनेमिक वेबसाइट जो है दैट चेंजेस कॉन्टीन्यूसली,
जैसे हमने कहा कि वो उसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन जो है वो आ रही होगी एंड दैट इज बीइंग पॉपुलेटेड इनटू दैट वेब पेज यूजिंग द सेम यूआरएल। जैसे आपने कहा जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वो इल्यूजन दे सकते हैं बट दैट इज डजंट मीन कि हमारी वेबसाइट जो है वो डायनेमिक है। सो इफ़ यू आर एन एंड यूज़र और जावास्क्रिप्ट आपको इस तरह की इल्यूजन दे रहा है कि चीज़ें जो हैं वो डायनेमिक हैं, वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सो हाउ व्हाट इज like how you are going to recognize if that page is actually dynamic? आप उन illusions के बीच में और actual dynamic change के बीच में कैसे differentiate करेंगे? सर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं कि आप वेबसाइट्स नहीं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जिस तरह इंस्टाग्राम वगैरह हैं, ये हमारे पास जो सी डायनामिक है कि ये ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट कर रहा है, डाटा लेके आ रहा है सर्वर साइड से, और मतलब हमारे यूज़र के एंड के ऊपर नहीं है कि यूज़र कोई रिस्पॉन्स दे तो उसके रिस्पॉन्स में जो सा कोई इस तरह की एक्शन परफॉर्म हो, ये सर्वर साइड से मतलब लेके आ रहा है। ये डायनेमिकली प्योरली डायनेमिक हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली बिल्कुल। जब ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आपने कुछ इंटरेक्ट आपकी इंटरेक्शन के ऊपर वो चेंज नहीं आई बट दे आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, जैसे आपने बात की कि सर्वर खुद से वो चेंजेस जो है वो डिटेक्ट कर रहा है और आपके पेज को अकॉर्डिंगली पॉपुलेट कर रहा है, सो दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि आपका जो वेबसाइट है दैट इज़ अ डायनेमिक एप्लीकेशन। दूसरी उसकी जो है एक इंडिकेशन ये हो सकती है कि इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑन दैट वेब पेज और उसके ऊपर आपका इंटरफेस मॉडिफाई हो रहा है, but as you close that website and you come back to it, all the changes that you have done on that page are going to be lost. So basically JavaScript जो है it stores everything temporarily, although हम ब्राउज़र के अंदर स्टोरेजेस वगैरह उसकी भी बात करेंगे, लेकिन मेनली एक वेबसाइट जो भी करेगा मोस्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी चेंजेस लेके आएगा, as you close that website and you come back to it, so basically it does not maintain any history about you, और वो क्या होगा, it's going to give you the same view as it presented to you when you first time visited that website। तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक वो चीज़ अपडेट नहीं हो रही। इसकी जगह अगर हम, जैसे आपने इंस्टाग्राम की एग्जांपल दी, फेसबुक को देख लें, लिंक्डइन को देख लें, सो आपने 2 महीने पहले जो चीज़ पोस्ट की थी दैट इज स्टिल अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। आपने जो फोटो साल पहले चेंज की थी दैट इज स्टिल अवेलेबल ऑन लिंक्डइन और फेसबुक। सो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन के दैट इंफॉर्मेशन अबाउट यू इज बीइंग परमानेंटली स्टोर्ड समवेयर, और वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, दे आर बीइंग स्टोर्ड ऑन द सर्वर। क्लाइंट वेबसाइट्स हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी क्लाइंट की मशीन या आपके ब्राउज़र के अंदर ही स्टोर कर रहा होता है जिसका शायद हमें पता ना हो। हम जब उस जगह पे पहुंचेंगे तो उसको क्लियरली उसको डिस्कस करेंगे कि ब्राउज के एप्लिक वेबसाइट्स किस तरह से सर्वर के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, किस तरह से कुछ प्रोसेसिंग वो डेलीगेट कर देते हैं क्लाइंट की मशीन के ऊपर, और कुछ डेटा सर्वर्स के ऊपर स्टोर होता है, कुछ चीज़ें जो है वो आपकी क्लाइंट के ऊपर स्टोर हो रही होती है। सो हाउ the server decide कि मैंने क्या करना है, there is a concept that we call fat client, thin client। सो ये इसी चीज़ को डील कर रहा होता है कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह से है और आपने किस तरह डिसाइड करना है कि आपने क्लाइंट के ऊपर कितनी प्रोसेसिंग करनी है और सर्वर के ऊपर कितनी करनी है। अ फेट क्लाइंट इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसमें एक सर्वर जो है उसके ऊपर लेट से लोड काफ़ी ज़्यादा है, सर्वर को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। सो व्हाट द सर्वर डज, वो आप उससे जो डेटा डिमांड कर रहे हैं वो सारा डेटा जो है उससे रिलेटेड वो उठा के क्लाइंट को भेज देता है विद अ प्रोग्राम। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और अब आपका जो क्लाइंट के ऊपर ही आपका जो कोड है वो उसको प्रोसेस करता है और उससे इंफॉर्मेशन निकाल के वो आपको प्रेजेंट करता है। तो बेसिकली उस डेटा के अंदर से जो इंफॉर्मेशन निकालना है वो सर्वर ने खुद नहीं किया, बल्कि डेटा अलोंग विद द प्रोग्राम दैट वुड एक्चुअली गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट डेटा वो सारा कुछ उठा के क्लाइंट के ऊपर डाल दिया है। इसका फ़ायदा सर्वर को क्या हुआ कि अगर सर्वर को एक टाइम पे लेट से 1,000 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द सेम फंक्शनलिटी, तो वो सब के लिए ये काम नहीं कर रहा, बल्कि इंस्टेड उसने क्या किया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के ऊपर डाल दी। सो जितना आप क्लाइंट के ऊपर ज़्यादा लोड डालेंगे दैट वुड बी फैट क्लाइंट। ठीक है, अ थिन क्लाइंट इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें सर्वर ज़्यादा काम खुद करता है और कम काम जो है वो क्लाइंट के ऊपर छोड़ देता है। सो देयर इज़ अ बाउंड्री बिटवीन द टू दैट यू हैव टू डिसाइड कि मैंने कितना काम खुद करना है और कितना क्लाइंट से करवाना है। उसके लिए जो मेन एक चीज़ है वो आपने ये देखना है कि क्लाइंट के ऊपर जो आप डेटा भेज रहे हो वो, और जो प्रोग्राम जो जावास्क्रिप्ट के अंदर चलेगा और उसको
उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकालेगा। दे आर एक्सेसिबल टू द एंड यूज़र क्योंकि दे आर बीइंग प्रोसेस्ड एट द एंड यूज़र्स मशीन। तो वो डेटा और वो प्रोग्राम अगर इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज वंस द यूज़र हैव एक्सेस टू सच डेटा तो दैट मे नॉट बी गुड फॉर योर बिजनेस। तो इस वजह से हमें ये देखना है कि हमने क्या काम खुद करना है और क्या सर्वर से करना है। आप इसकी मिसाल ऐसे देख लें कि लेट से आपका जो आपने एक एप्लीकेशन बनाई है और वो लोगों को लोग उसमें अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स दे देते हैं, लेट से अपनी सैलरी दे देते हैं, अपनी सेविंग्स दे देते हैं, दूसरे एसेट्स वगैरह दे देते हैं, और आपका प्रोग्राम जो है वो ये कैलकुलेट कर देता है कि बैंक से उसको कितने अमाउंट की लोन मिल सकती है। ठीक है। सो इफ़ लेट से ये आपका मेन जो आपका बिजनेस मॉडल है वो ये है कि लोग वहाँ पे जाते हैं, अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, द मॉडल सेज के उनको कितनी लोन मिल सकती है। तो अगर आप जो है ये प्रोग्राम क्लाइंट एंड के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, सो द यूजर वुड हैव एक्सेस टू योर एक्चुअल मॉडल कि आप किस तरह से ये कैलकुलेट करते हैं, एंड दे मे रेप्लिकेट दैट मॉडल, एंड आप इट मे नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर योर बिजनेस, क्योंकि आपकी जो मेन जिस चीज़ के ऊपर आपका सारा एप्लीकेशन खड़ा था वो चीज़ जो है वो चोरी हो गई है। नाउ एनी वन कैन यूज दैट इन देयर ओन एप्लीकेशन। सो इन दैट केस द प्रोग्राम इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट कि आप अपना बिजनेस लॉजिक जो है उसको पब्लिकली ओपन ना करें। हमें नहीं पता कि गूगल जो है वो किस तरह से सर्च कर रहा है कि कौन सा पेज पहले रैंक पे आएगा, कौन सा दूसरे पे आएगा। वो जब 5-10 साल आगे चले जाते हैं फिर अपने पुराने मॉडल जो है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अगर वो ये ना करें और एग्जैक्टली जो करंट मॉडल है वो आपके साथ शेयर करें, तो वही मॉडल जो है वो बिंग भी यूज़ कर सकता है, वो याहू भी यूज़ करता है, वो एमएसएन भी यूज़ कर सकता है। सो एनीथिंग दैट इज़ पॉपुलर और वो मॉडल अगर आप ओपन कर दें, सो आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो उनको एक्सेस मिल जाएगी उस मॉडल की, एंड योर एप्लीकेशन में नॉट बी एनी दैट पॉपुलर एनी मोर, क्योंकि अब उस तरह के और एप्लीकेशन भी बन सकते हैं। सो जनरली बिजनेसेस जो हैं उनके अंदर एक रिसर्च का एक उनका एक सेक्शन होता है जो उनके लिए याहू के लिए अपनी रिसर्च टीम होगी जो याहू के रिगार्डिंग रिसर्च कर रही होगी, गूगल के अंदर अपने लोग रिसर्च कर रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अपने कर रहे होंगे, एंड दे जनरली डू नॉट मेक द रिसर्च पब्लिक। आप जिस तरह के रिसर्च पेपर्स आप देखते हैं ये जनरली एकेडेमिया के अंदर होता है कि वट एवर द रिसर्च इज बीइंग डन उसको स्ट्रेट अवे पब्लिक कर दिया जाता है, एंड एनी वन कैन हैव एक्सेस टू दैट रिसर्च, क्योंकि मेन फोकस ये होता है कि कुछ बेहतर मॉडल्स बनाए जाएं जो जनरली लोगों को मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर हेल्प आउट कर सके। लेकिन अगर गूगल किसी को पे कर रहा है टू डू रिसर्च दैट वुड एक्चुअली इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ अ गूगल मशीन, तो या गूगल के जो सर्च इंजन हैं, सो व्हाई वुड दे वांट टू मेक दैट पब्लिक, जब उन्होंने अपने रिसर्चर्स को इतना पे किया है एंड दे हैव कम अप विद very good models, so why would they want to share that same model with their competitors? तो इस तरह से बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है रिसर्च की टीम्स हैं, दे ट्राई टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स। अमेजोन के अंदर अपने लोग रिसर्च कर रहे हैं जो अमेजोन को बेहतर कर रहे हैं, ईबे के अंदर लोग रिसर्च कर रहे हैं जो ईबे के प्रोडक्ट को बेहतर कर रहे हैं, बट दोज मॉडल्स डू नॉट गेट पब्लिक at the same time, they only get public when they have a better option। वो जब आगे मूव कर देते हैं sometimes they just share the old model, ताकि क्योंकि तब उनको ये ख़तरा नहीं होता कि दैट कैन बी मिस यूज बाय देयर कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, सो अच्छा हाँ, सो बात ये हो रही थी कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप क्या चीज़ें जो हैं वो आप क्लाइंट के साथ शेयर करें, बिकॉज इज whatever that is that you are sending to the client for processing, so basically you are sharing it with the outside world। जो चीज़ सर्वर के ऊपर पड़ी है, unless your server gets hacked, that is your private property, और जब तक आपको सर्वर के ऊपर रहेगा सो उस टाइम तक उसको बाहर के लोगों को उसकी एक्सेस नहीं होगी। सो यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा डेटा आपने आउटसाइड वर्ल्ड के साथ शेयर करना है, कौन सा जो है आपने प्रोग्राम या लॉजिक जो है वो शेयर करनी है। अगर इस तरह से हम ये देख लें कि लेट से लोगों की सैलरीज हैं बैंक्स के अंदर या उनके अकाउंट्स के अंदर जो भी बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर उस बैलेंस के ऊपर आप उनको वो ये देखना चाहते हैं कि हमें लेट से कितना टैक्स कटेगा, सो अगर वो आप क्लाइंट के ऊपर भेज दें, सो एनी वन दैट इज सिटिंग ऑन द क्लाइंट और एनी वन दैट इज इन बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट, जितने वो जिस राउट के थ्रू वहाँ तक पहुँचेगा, एनी वन कैन हैव एक्सेस टू दैट डेटा।
ठीक है, कि वो जो है हाउ मेनी बैलेंस दैट पर्सन हैज इन हिज अकाउंट. तो बेसिकली ऑल्दो it will be encrypted, but if someone has like some algorithm that would actually decrypt it, the main thing is that you are basically sending that data out. So हम generally client के ऊपर वो data भेजेंगे जो हमारे लिए harmless हो, ठीक है, जो अगर किसी को पता चल भी जाए तो उससे हमारे बिजनेस के ऊपर या उसकी जो जिस बंदे का डेटा है उसकी जो प्राइवेसी है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा. So basically the programs that are harmless and the data that is harmless is are being sent to the client for processing in and that is how we decide between fat client and thin client कि हमने सर्वर के ऊपर कितनी प्रोसेसिंग करनी है और क्लाइंट के ऊपर कितनी प्रोसेसिंग करनी है. अच्छा, हम फाइल्स के ऊपर भी सर्वर साइड पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ गुड चॉइस. आपने डेटाबेसेस का कोर्स पढ़ा हुआ है जिसके अंदर ये सारी इसके ऊपर डिटेल्ड बहस है कि डेटाबेसेस जो हैं बेसिकली दे स्टोर डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे जिसके अंदर गलती करने के चांसेस कम होते हैं. रिट्रीवल का प्रोसेस बड़ा एफिशिएंट होता है. सो हम ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा यूजर्स होंगे, हम उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे होंगे. सो storing all their details in a file may not be a good choice, and therefore we need to have some databases that would actually help with persistence. जैसे मैंने आपको कहा कि LinkedIn जो है that is using सम डेटाबेसेस के जहाँ पे वो स्टोर कर रहा है कि आपने 3 महीने पहले क्या पोस्ट किया था. फेसबुक स्टोर कर रहा है कि आपने 2 साल पहले कौन से इमेजेस अपलोड की थी. सो एवरीथिंग इज बीइंग स्टोर्ड इन डेटाबेसेस एंड द ऑब्जेक्टिव इज फॉर हैविंग सिक्योर्ड स्टोरेज एंड एफिशिएंट रिट्रीवल. और वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टोर है एंड देयर आर लीस्ट चांसेस कि वो डेटा जो है वो इफेक्ट हो जाए. सो ऑल द डेटा इज और इन द सर्वर, और सर्वर के ऊपर जो है डेटाबेस के सर्वर्स हैं, फिर वहाँ पे ये सारा डेटा पड़ा हुआ है एंड एनी यूज़र कैन एक्चुअली हैव एक्सेस टू देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन. डेटाबेसेस जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एप्लीकेशंस जो बेसिकली पर्सनलाइज सपोर्ट देते हैं. फॉर एग्जांपल जहाँ पे लोग जाके अपना अपना लॉगिन अकाउंट बनाते हैं. सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग सच एप्लीकेशन, सो यू मस्ट हैव अ डेटाबेस, क्योंकि अब लोगों के सारे लॉगिन के डिटेल्स और उसके बाद जो जो वो करते हैं वो सारे आप अकॉर्डिंगली स्टोर करेंगे ताकि जब भी वो लॉगिन करें तो उनको सिर्फ अपनी पर्सनलाइज डिटेल्स जो हैं वो शो हों. जब आप जीमेल के अंदर लॉगिन करते हैं आपको सिर्फ अपने ईमेल्स नज़र आते हैं. So for that you need to have storage that would actually store all that information that is like related to you, और इस तरह से हर बंदे से related जो है वो information accordingly stored हो. ठीक है. So for that we would start with PHP, and first of all we would do form handling at the server end, how the data is being communicated to the database servers, किस तरह से हम उसको persistently store कर सकते हैं और retrieval कर सकते हैं. So basically PHP is going to play the role of a middleman between databases and front end ताकि वो data को back and forth pass कर सके. एक चीज़ जो यहाँ पे हम बीच में देखेंगे that is jQuery. jQuery is extremely important, although its popularity is dropping at the moment with due to different client-side frameworks, but still काफ़ी ज़्यादा websites जो हैं they are still using jQuery. jQuery is basically a library of JavaScript, और इसमें अंदर आप देखेंगे कि it basically makes things a lot easier for you जो आप JavaScript के अंदर कर सकते हैं, और डिफरेंट एनिमेशन वगैरह आप उसके अंदर ला सकते हैं, और आप जो है जो पेज की प्रोसेसिंग है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं. जिस तरह से चीज़ें एडवांस हो रही हैं टाइम के साथ, जावास्क्रिप्ट बेहतर हो रही है, HTML का HTML5 आ गया, CSS3 आ गया. सो बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो रही है, एंड द मेन thing that is being focused in these latest versions is that things that people do more consistently are basically made part of the newer version of that language. For example, अगर हम HTML के अंदर देखें, so when I started web development कोई 15 साल पहले, सो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कोड करना पड़ता था कि ये फॉर्म जो है फॉर्म की ये फील्ड जो है इट इज़ मैंडेटरी, इसको यूज़र खाली नहीं छोड़ सकता. तो इसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर चेक करते थे कि ये फॉर्म की फील्ड जो है ये यूज़र ने खाली तो नहीं छोड़ी. ये फॉर्म फील्ड जो है ये लेट्स से ईमेल एड्रेस के लिए है. सो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम चेक करते थे कि ठीक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है कि नहीं किया. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी
अच्छा, नेम का है तो नेम के अंदर नंबर नहीं आ सकता, ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू खुद मैन्युअली इसको कोड करके करते थे। एंड एज आई सेड के ऑर्गेनाइजेशन के पास ये चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं, सो दे डू नॉट कोड इट फॉर एवरी प्रोजेक्ट, लेकिन बेसिकली दे डू कोड देम ईच टाइम दे अपीयर, और फिर अगले जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर वो रीयूज हो रही होती हैं। सो एच टी एम एल थॉट के ओके, जब भी नेम की फील्ड आएगी पीपल विल ऑलवेज ट्राई टू सी के वो नेम लाजमी प्रोवाइड हो, उसके अंदर नंबर ना हो। जब भी ईमेल की फील्ड आएगी तो उसके अंदर लाजमी ये हो कि ईमेल के जो रूल्स हैं उसको फुलफिल करता हो। सो नाउ विद लेटेस्ट वर्जन ऑफ एच टी एम एल उसने ईमेल की जो है उसको एज एन एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर दिया, और अगर आप उस फील्ड को ईमेल सेट करते हैं सो सारे रूल्स उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। सो वो सारी जावास्क्रिप्ट की एफर्ट जो हर बंदा अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर रहा था वो अब एच टी एम एल की एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी बन गई है, और अब सारे लोग वो काम नहीं करते। इस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे काम जो है जैसे मैंने आपको कहा कि जे क्वेरी फैसिलिटेट कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ एन एडेड लाइब्रेरी, अब वो कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर आ गई हैं। उसकी मिसाल एक ऐसी है कि व्हेन वी स्टार्टेड जावा वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट एट दैट टाइम, आप एच के अंदर से जावास्क्रिप्ट को कॉल करते थे, और jQuery ने हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर दी कि विदाउट एक्चुअली कॉलिंग फ्रॉम HTML आप स्ट्रेट अवे जावास्क्रिप्ट को jQuery के अंदर जावास्क्रिप्ट को कॉल कर सकते हैं टू मैनिपुलेट अ पेज। अब दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? फ़र्क जो है वो आपने वेब जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के कोर्स में पढ़ा होगा कि कपलिंग ऑफ द कोड जो है वो ज़्यादा हो जाती थी। अब HTML के अंदर आप फंक्शंस को नेम करते थे, द फंक्शंस वर गोइंग टू बी in JavaScript, if you have changed or the name of a function or its nature, आपने उसका कोड मॉडिफाई कर दिया, now you have to look into the HTML pages के कहाँ पे उसका इफेक्ट आएगा, कहाँ पे आपने फंक्शंस को मॉडिफाई करना है। So jQuery was a huge breakthrough at that time, considering the fact कि आपको HTML से उसने completely जो डायनेमिक इफेक्ट था उसको अलग कर दिया, और अब आपको HTML के अंदर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है in writing your JavaScript code using the jQuery library. So वो चीज़ें जो थी now again in the latest improvements in JavaScript, वो डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर वो चीज़ आ रही है, क्योंकि दे हैव रियलाइज्ड कि ऑल्दो कि अच्छा ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है, the way we were doing it were like causing more problems to the developers. So now the default version of JavaScript has improved, और उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो डिकपलिंग जो है वो हो गई है HTML और जावास्क्रिप्ट या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। जो डायनेमिक इफेक्ट्स और वो एनिमेशन वगैरह थी जो पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं थी, सिर्फ jQuery के अंदर हम कर सकते थे, now that can also be done with the help of jQuery, with the help of sorry default JavaScript. But still I think jQuery is still very helpful. पहली चीज़ तो ये कि अगर आप किसी ऐसी वेब एप्लीकेशन के अंदर काम करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी jQuery इम्प्लीमेंटेड है, तो अगर आपको इस लैंग्वेज के साथ नो हाउ हो, सो आप उसके कोड को आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड आई पर्सनली फील कि अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कर रहे हैं तो जावा jQuery के अंदर आपको काम काफ़ी कम लाइन ऑफ कोड के साथ कर सकते हैं। सो आई थिंक jQuery इज स्टिल वेरी हेल्पफुल, और आप उसको क्लाइंट साइड या डायनेमिक इफेक्ट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वी विल स्टार्ट विद माई एसक्यूएल विद PHP, जिसके अंदर हम डेटाबेसेस या बैकएंड का सारा सपोर्ट देंगे। वी विल लुक इनटू अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे कि हम क्लासेस बनाएं और उसके थ्रू हम डेटाबेसेस को मैनिपुलेट करें ताकि हमारे कोड के अंदर एरर या उसके अंदर जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो वो कम से कम हो। After that, we would look into the MVC architecture, और हम टेम्पलेट्स वगैरह देखेंगे कि किस तरह से हम अपने कोड को ज़्यादा मैनेजेबल बना सकते हैं। बिकॉज बाय दिस टाइम कि आपके पास HTML भी है, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, jQuery भी है, PHP, एंड यू आर ऑल्सो डीलिंग विद डेटाबेसेस, आपका कोड काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें मिक्सअप कर रही होंगी आपस में। सो बाय दिस टाइम यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर आर्किटेक्चर ताकि आपकी वेबसाइट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से क्लियरली सेपरेबल हों, ताकि एक जगह पे आप चेंज करें तो कम से कम इफेक्ट उसका जाए दूसरे कंपोनेंट्स में और आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगानी पड़े चीज़ों को फिक्स करने में। सो वी वुड यूज़ MVC फ्रेमवर्क and we will use some templates also that again will help you to separate the logic from the presentation, और ये चीज़ें हम देखेंगे। Then we would use JSON, XML शायद हम ना देखें क्योंकि XML is again getting
like losing its popularity due to JSON, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव XML का ये था कि डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेट हो सके ताकि उसको प्रोसेस करना आसान हो। तो JSON एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है, स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा को कम्युनिकेट कर रहा है। और चूंकि क्लाइंट और सर्वर के ऊपर जो है डेटा की कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ क्वाइट फ्रीक्वेंट, सो वी वांट दिस डेटा टू बी इन सच अ कॉम्पैक्ट वे, वो इतना कम साइज ले कि ये कम्युनिकेशन आसान हो। तो जेसॉन जो है वो एक्सएमएल से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। हम आगे जाके इसको देखेंगे कि किस तरह से आप सेम इंफॉर्मेशन जो है वो आप जब आप जेसॉन के अंदर कम्युनिकेट करेंगे तो वो काफ़ी कम स्पेस लेगा एज़ कम्पेयर टू एक्सएमएल। तो ये जो हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, सो जेसॉन इज़ गोइंग टू बी मोर एफिशिएंट, उसका रिस्पॉन्स टाइम आपको बेहतर देगा क्योंकि इट्स लाइट वेट। सो दैट्स वाई जेसॉन इज गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, और उसकी वजह से एक्सएमएल की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती जा रही है। सो मे भी हम एक्सएमएल को वी विल सी कि कितना टाइम है, बट वी वुड डेफिनेटली डू जेसॉन, और एक्सएमएल को शायद हम इग्नोर कर दें। आगे हम देखेंगे मोंगो डीबी। मोंगो डीबी इज़ द डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस, और उसके अंदर सारा जो डेटा है दैट इज़ बीइंग स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड यूजिंग जेसॉन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारा जेसॉन बेस्ड एक डेटाबेस है। सारा स्ट्रक्चर द वे इट स्टोर्स डेटा इज़ बेसिकली इन द जेसॉन फॉर्मेट। तो हम मोंगो डीबी को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि दिस डेटा दैट यू हैव एक्वायर्ड फ्रॉम MongoDB आप उसको सर्वर साइड पे JSON फॉर्मेट में कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, आप उसको क्लाइंट साइड पे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप JSON को PHP के अंदर किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं बिफोर सेंडिंग दैट डेटा आउट टू द क्लाइंट, और आप उसको जावास्क्रिप्ट या jQuery के अंदर कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं बिफोर सेंडिंग इट बैक टू द सर्वर। MongoDB is also one of the choices that people go with जब आप Node.js यूज़ कर रहे थे, which is like another very popular way of web application developments. Node.js की जो मेन जो पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि एज यू सॉ के हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ डील कर रहे होते हैं एज वी डेवलप फ्रंट एंड एंड बैक एंड। सो बेसिकली you need to stay abreast with a number of languages. So Node.js ने ये किया कि वो फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट और बैक एंड पे PHP या जावा या पाइथन या सी शार्प उस सारी झंझट को ख़त्म कर दिया, एंड नाउ यू जस्ट नीड टू learn one JavaScript that is being used both at the server and at the client. So Node.js has servers that basically understand code in JavaScript at the server side also. So basically एक तो दोनों के बीच में कम्युनिकेट करना आसान हो गया, और सेकेंडली आपके ऊपर जो लोड था वो भी कम हो गया कि नाउ यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू कोड इन जावास्क्रिप्ट, और आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। यू कैन कोड बोथ एट द फ्रंट एंड एंड एट द बैक एंड। विदाउट दिस, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही कर सकते थे। एज आई सेड, मैंने इसके अंदर अंदर मॉडिफिकेशंस की थी, बट आई थिंक दैट वाज ऑन अ डिफरेंट लैपटॉप, सो आई शेयर दैट विद यू। हम CMSs को देखेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से वर्डप्रेस या ड्रूपल के उसको आप बैक एंड के थ्रू एज एन एडमिन पैनल किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं एज एन एंड यूज़र और एज एन एडमिन यूज़र, कि आप किसी को उसके अंदर वेबसाइट्स बना के दें और आप उसके बैक एंड पे कोड कैसे काम कर रहा था, ताकि हम कोड के अंदर जाके, जैसे मैंने आपको बात की कि जैसे ही आपने CMS लाइक वर्डप्रेस का कुछ कमांड वगैरह रन की, दैट इज गोइंग टू डिप्लॉय अ फुल फ्लेज वेबसाइट फॉर यू, बट अगेन, और फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं एडमिन पैनल के थ्रू ऑल्सो। बट इफ़ यू वांट टू सी हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड इफ यू वांट टू मेक सम मॉडिफिकेशंस टू इट, तो आप कोड के अंदर जाके भी वो काम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यू शुड बी अवेयर कि बैक एंड पे उसका सारा कोड जो है वो कैसे काम कर रहा होता है। With Node.js we will also look into React, ताकि हम MongoDB और also हमने पहले से देख लिया है। सो Node.js और React को भी साथ देखें कि आप जो है बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड विद Node.js जो है उसके डेवलपमेंट भी आप कर सकें। सो ये है थोरो गो थ्रू ऑफ दिस कोर्स। हम कुछ काफ़ी टॉपिक्स अभी भी ऐसे हैं कि जो हम इसके अंदर फिट नहीं कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टेस्टिंग की कोई बात नहीं की। टेस्टिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन वेब एप्लीकेशंस, क्योंकि जब आप डेस्कटॉप पे कोई चीज़ बना रहे होते हैं, सो
उसकी सिक्योरिटी के इतने इश्यूज नहीं होते, बिकॉज ओनली समवन सिटिंग ऑन दैट कंप्यूटर कैन एक्चुअली यूज इट। उसकी परफॉर्मेंस का भी इतना इशू इसलिए नहीं होता कि उसको एक वक्त पे एक यूज़र यूज़ कर रहा होता है, वट एवर whoever the person is using that computer। लेकिन वेब बेस्ड पे थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि thousands of people may be using that website all together at the same time। हमें लोड के ऊपर डेटा अपने वेबसाइट को चेक करना चाहिए कि जब उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है तो वो कैसे बिहेव करता है। सो सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से, लोड के परस्पेक्टिव से, रिस्पांस टाइम के परस्पेक्टिव से, वी शुड बी टेस्टिंग और वेबसाइट्स। तो वी मे नॉट मेक दैट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बट आई कैन शेयर रिसोर्सेज कि आप किस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वेबसाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई कैन शेयर सम रिसोर्सेज, बट we may not be able to fit that into our course। So this is the general overall idea। इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है, बस मोस्ट प्रॉब्ली हम इस कोर्स के अंदर यही करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और अभी जो है आई एम जस्ट शेयरिंग अ लिस्ट ऑफ दीज फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। और आप मुझे इसमें बता दें विद यस और नो कि आपको इसके आपने इसको पहले से इसके अंदर कुछ किया हुआ है कि नहीं। वट एवर आपने जस्ट एक दिन काम किया, 5 दिन काम किया हुआ है, कुछ भी आपको नो हाउ इसके बारे में है कि नहीं। ठीक है। सो हमारा आई थिंक क्लासरूम अभी एक्टिव नहीं है इस कोर्स के लिए। सो आप यहीं पे मैसेज के अंदर मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं इसके लिए। आई एम रिकॉर्डिंग क्लोज कर दें। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। और अभी मुझे सिर्फ आई जस्ट अपलोड दोज क्वेश्चंस के आप उसको रिस्पॉन्ड करें फॉर माय इंफॉर्मेशन कि मैंने किस टॉपिक पे कितना टाइम लगाना है। एंड दैट इज़ ऑल्सो गोइंग